We'll continue the same session, lexical and syntax analysis. Okay. Previously, we have seen some of the questions from lexical and both syntax analysis. Now we'll continue the same. How many of you answered? There was, I think it's a numerical answer type, right? What is the answer? Quick. You should not wait much time, right? Yeah. Rishi, I'll take the doubts at the end of the session. अगर किसी को भी डाउट्स है यार, आई एम ऑलवेज बी हैप्पी टू रिजॉल्व योर क्वेश्चंस. आपको पता है यार, मैं स्टूडेंट के लिए कुछ भी दे सकता हूँ, बट टाइम इज ओनली द वन दैट आई कैन गिव यू, not money, not I cannot meet you, right? So only the thing that I can help you, in the class at the end of the session. In the beginning of the session only you should attend the class, then complete the class, then you ask the questions what you have. How many tokens are generated by the lexical analysis if the following program has no lexical error? Okay, assume that no lexical error is here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, sorry. It's a comment here, right? Comment begin. So it will wait till the end happens. Where is that end? It's here. So it will start scanning everywhere. It is begin and it is end. So now what happens here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. How many answered 17? That is the right answer. 17. Look at that. Some people. See, the end is here. So it is going to search for the end. Here it is the begin, right? It is only looking for the end. No begin again. If begin comes, it will not know because lexical analysis knows the pattern. यहाँ पर begin हुआ तो एंड होना चाहिए. डायरेक्टली एंड हुआ तो उनको समझ नहीं आता एंड क्यों हुआ, राइट? अगर डायरेक्टली स्टार स्लैश हुआ तो इनको समझ में आता मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बट स्लैश स्लैश क्या है यार, ठीक है, स्लैश स्टार ये होता बिगिन. इफ इट बिगिन्स देन इट विल ओनली लुक फॉर एंड. You know that point, right? Correct? 17. Comments are not just ignored, it's deleted in the program. Comments for just for us who are writing the program for them, not for the machine, not for the system. It's only for us who are writing the programs, right? Not for the machines. This is not useful for the machines, only for the useful for the programmers. Okay, next. Find the line number in which the lexical error is produced. Can you start finding out line number? I think there's only one line number which produces lexical error. That's why they asked it. Do you have any such things? What is the answer? Quick. Spaces are also deleted. That's true. जो क्वेश्चन में दिया है उसको समझ लो यार, बाकी छोड़ो. Good. See, it looks like everything is fine. One token, 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 right? Token, 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 right? These are all the tokens. यहां पर दिक्कत हो सकता, और टोकन 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 टोकन, सिर्फ इसमें दिक्कत है लेक्सिकल एरर. लाइन नंबर क्या है? 5. बिल्कुल सही है. ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, राइट? कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर. Find the number of terminals in follow set of S. What is the answer? Anybody? Follow of S. How many terminals are there? कितने terminals है? S तो by definition डॉलर है. इसको देख के आप बोल सकते हैं यार राइट पैरेंथेसिस है,
बट इस एस को देख लिया तो फर्स्ट ऑफ एस चाहिए। फर्स्ट ऑफ एस मतलब ये होता है, इसको देखो, ये बोलता है फर्स्ट ऑफ एस, या क्या मिलेगा आपको, ओपन पैरेंथेसिस, तो ये भी मिलेगा और कोई सिंबल ही नहीं है, तो कितना होगा 3 3 3 नॉट 2, 3 यार, $3। और यार ओपन भी आएगा, क्लोज भी आएगा, सब आएगा, राइट। बहुत सारे अलग अलग एस है, 3 सही है। या बिल्कुल सही है। और 2 क्वेश्चन है, और यार विच ऑफ द फॉलोइंग आर टोकन्स इन सी लैंग्वेज, बताना यार, MSQ होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए पोल रख लेते हैं। सेमीकोलन ये टोकन होता क्या, आइडेंटिफायर टोकन होता क्या, कीवर्ड टोकन होता क्या, वाइट स्पेस टोकन होता क्या। वाइट स्पेस जो है वो टोकन नहीं होता, बट लेक्सिकल एनालिसिस का काम है, करेक्ट। तो ये तो आपको पता है यार, इतना तो टाइम चाहिए नहीं। सेमीकोलन टोकन है, कीवर्ड टोकन है, आइडेंटिफायर टोकन है, बट वाइट स्पेस टोकन नहीं है। बट ये भी लेक्चरर्स का जॉब है, उसको रिकॉग्नाइज करके डिलीट करना चाहिए इसको, राइट। तो आंसर क्या होगा, ABC। कम से कम जो अटेंड नहीं किया उसको कर लो। वाइट स्पेस इज recognized by the analyzer but not considered as a token in C language or by the compiler. देख लेते कितने लोग आंसर किया, आंसर करने के बाद भी आंसर नहीं किया तो वेरी डेंजरस। ग्रेट। फिर भी ये पता नहीं कि कहाँ से आते लोग, ये लोग कंसिडर कर लो यार, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर राइटिंग इवन गेट एग्जाम, जो 3 लोग जो भी है। कंसिडर फॉलोइंग ग्रामर जी, व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ एस, इट्स MCQ यार। फर्स्ट ऑफ एस तो यूनिक आंसर होता है ना, फटाफट बता देना यार, यहाँ कुछ होना चाहिए ना, कर लेते यार। B डिराइव्स एप्सिलॉन रख दो, ठीक है। और या मैं वेट कर रहा हूँ। What is first of S? राइट, दिस इज द लास्ट होमवर्क क्वेश्चन, राइट। सबको आंसर आना चाहिए यार। फर्स्ट ऑफ एस मतलब होता है, इसको देख के समझ में आता है एप्सिलॉन तो आएगी, क्यों, बी का वजह से।
जब ए का एप्सिलॉन पुट किया, एप्सिलॉन नहीं आएगा बाहर, वो आएगा ये, तो ये आएगा ये, तो एप्सिलॉन कामा ए मतलब होता है आंसर सी। ठीक है, सी। यार इसके लिए पोल नहीं होता यार, ये तो होमवर्क क्वेश्चन है यार, होमवर्क के लिए पोल जरूरत ही नहीं है। अब बताना यार, इज देयर एनी डाउट सो फार? इतने क्वेश्चंस किया, 15-16 क्वेश्चंस किया है, इज देयर एनी डाउट दैट यू गेट सो फार? तो अभी कंपाइलर स्टार्ट किया तो डाउट्स तो आएगी, जो तो बहुत इजी है अब तक किया है। एग्जाम में यही होता है, कंपाइलर मतलब इतना बड़ी सब्जेक्ट नहीं है, इजी है, और वो भी क्वेश्चंस ऐसे लगता है सिर्फ कोड ऑप्टिमाइजेशन छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स बहुत इजी होते हैं, याद रखना, सिर्फ कोड ऑप्टिमाइजेशन छोड़ के, क्योंकि कोड ऑप्टिमाइजेशन अनप्रेडिक्टेबल है, वो यार रिसर्च काइंड ऑफ टॉपिक है, तो वहां पर आपको एनालाइज करना होता बेस्ट क्या है, मिनिमम वेरिएबल्स कितना है, यार बेस्ट सोचना होता, जो बेस्ट सोचेगा उनके लिए आंसर मिलेगा वहां पर। बट यहां पर लास्ट चैप्टर छोड़ के बाकी ऐसे टीओसी में भी अनडिसरेबिलिटी छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स इजी है, राइट। एक टॉपिक होता है प्रैक्टिस करना। एसडीटी भी थोड़ा टफ ही नहीं है, जिसको टफ लगता है वो दिमाग नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तब दिमाग नहीं होता तो आंसर नहीं कर सकते ना, बहुत इजी बात है, करेक्ट। सब इजी है, याद रखना, सब इजी है, यू आर नॉट गिविंग द टाइम, दैट्स व्हाई इट्स मेक्स यू डिफिकल्ट। ओके, चलो आज की टॉपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट, यार ये भी, हाँ आई एम सॉरी क्वेश्चन चेंज किया था, आई एम सॉरी, एमएसक्यू आप कर लो जो भी है। जो आंसर किया वो चार्ट में डाल सकते हैं, क्यों, बाकी लोग को भी समझना चाहिए यार ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है। अब तक शुभम मिश्रा, शुभम मिश्रा नहीं यार, ये कौन है वो, चला गया यार, अनुपम, हिमांशु, जो ACD किया है वो लोग बिल्कुल सही है, ACD क्यों सही है वो भी देख लेते, A B तो नहीं है, CD ये लोग सही है, मतलब सब में यार मिलके 50% लोग बिल्कुल सही किया है। देखो ये इफ का स्टेटमेंट है, इफ कीवर्ड है ना, ओड है नॉट, मतलब कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, इफ ये कंडीशन मान सकते हैं ना, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है इसके अंदर। और फॉर देखो
यहां सेमीकोलन होगा तो बिल्कुल सही होता है, ये बिल्कुल गलत है। और वाइल यार स्टेटमेंट में यहां कंडीशन होना जरूरत नहीं। आप अगर वाइल ऐसे भी लिख सकते एक्स कामा 0,1 लिखा है तो 1 मतलब ये होता है ट्रू, अंदर जाएगा। अगर 1,0 लिखा है, 1,0 लिखा है, ये फॉल्स होता है। तो इट्स जस्ट लाइक एन एक्सप्रेशन, राइट? ये तो एक्सप्रेशन है, बिल्कुल ये सही है। और ये 4 स्टेटमेंट्स है, ये सेमीकोलन बी सेमीकोलन, ऐसे वर्क होता है ये वाला, बट चारों मिलके एक लाइन में लिखा है कामा से, ठीक है? ये भी बिल्कुल सही है। तो आपको ए सी डी आंसर होना ही चाहिए था, बट पता नहीं कितने लोग किया है, ठीक है? 50%। कंसिडर फॉलोइंग ग्रामर जी। कुछ ऐसे ग्रामर दिया है, वो जी क्या है? वो एमएसक्यू है, ठीक है? ज्यादा टाइम लेंगे हम, इस टाइप की क्वेश्चंस आएगा। सबको आंसर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट। LL1 में शॉर्टकट अप्लाई कर दो, LR में SLR में डायग्राम डिजाइन करो, तब समझ में आता आंसर क्या है। सिर्फ एडी सी नहीं होता क्या? सी चेक करके बताना, सी नहीं होता क्या? सारे ABCD। कितना इजी एग्जाम्पल है, तो इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे मतलब यू आर नॉट स्टडीड कंपाइलर, ठीक है? हाँ बी तो नहीं होगा, ये क्लियर है। आयुषी सही किया है। हाँ सृष्टि, मैं यही तो देख रहा था, कोई आंसर करेगा क्या? ठीक है, आंसर ये होना चाहिए, ये सी एंड डी। क्यों होगा वो देख लेते हैं हम। होगा तो है, क्यों होगा? 60%। देखो LL1 इसलिए होगा, ये देख के बताना, फॉलो ऑफ एस कंप्यूट करना है, इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ फर्स्ट ऑफ ये होता है, ये फॉलो ऑफ एस तो डॉलर है, सिर्फ डॉलर इंटरसेक्शन ए एम्प्टी है, तो ये समझ में आता है LL1। ये LL1 के लिए कॉन्सेप्ट है। और LR0 SLR के लिए ये देखना इनिशियल स्टेट्स, एस डैश डिराइव्स डॉट एस, और एस क्या होता? डॉट एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन दोनों सेम है, और एस डिराइव्स डॉट ए, और यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता, ये LR0 नहीं होता। क्यों? ये शिफ्ट आइटम है, ये रिड्यूस्ड आइटम है, सेम स्टेट के अंदर है। बट उसके बाद देखो एस एक ही आइटम है, ये एक ही आइटम है, देखना मत एक ही आइटम को। अब SLR क्यों होता है? क्यों? ये जो ए है ये फॉलो ऑफ एस में नहीं होता है, ये इज नॉट बिलोंग्स टू फॉलो ऑफ एस, इसलिए ये SLR होगा। जब SLR होगा तो CLR भी होगा, चेक करना जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए ACD आंसर होगा, ठीक है? बहुत इजी है यार, 1 मिनट भी नहीं लगता जो अच्छा से प्रैक्टिस किया होता।
ठीक है, पता नहीं कौन सही करेगा, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, इतना इजी तो नहीं है। मैं 120 सेकंड टाइम दे रहा हूं, ठीक है, सही से पढ़ना, सब कुछ सही से पढ़ना, +1 -1 सब। किसको मिला आंसर? A+B क्या है? न्यूमेरिकल आंसर टाइप। फोर फाइव क्या है यार? 4 5 4 3। ओ माय गॉड, व्हाट इज द राइट आंसर? ठीक है, देख लेते क्या सही है आंसर है। देखो फर्स्ट ऑफ जेड कंप्यूट करना है, कर सकते नहीं कर सकते बताना यार, अगर नहीं कर पाए तो कंपेलन मत पढ़ना। फॉल ऑफ वाई, फर्स्ट ऑफ जेड, देखो कितने जेड है इसमें, यहां भी एक है, यहां भी एक है, ये जेड बता रहा है यार। फर्स्ट ऑफ जेड, सॉरी आई एम सॉरी, फर्स्ट है ना, फॉलो नहीं, फर्स्ट ऑफ जेड, ये देखना जेड मतलब ये है क्यू जेड एप्सिलॉन। तो फर्स्ट ऑफ जेड में एक तो एप्सिलॉन डायरेक्ट है, और क्यू जेड, क्यू से क्या मिलेगा आपको? क्यू से वाई क्यू और एप्सिलॉन। जब एप्सिलॉन पुट किया जेड मिलेगा, वो अलग बात है। वाई क्यू पुट किया तो वाई से क्या मिलेगा? ओपन पैरेंथेसिस एंड आईडी, तो ओपन पैरेंथेसिस आईडी मिलेगा। बट जब एप्सिलॉन पुट किया, जेड भी इंपॉर्टेंट होता है, जेड मतलब यही तो है जेड, राइट? तो वो एप्सिलॉन ऑलरेडी आया है, तो ये है फर्स्ट ऑफ जेड। फर्स्ट ऑफ जेड इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, कि जेड मतलब क्यू जेड, क्यू मतलब वाई क्यू, वाई मतलब ओपन आईडी, और देखो क्यू मतलब एप्सिलॉन भी हो सकता, पर जेड मतलब समझ लो यही तो है जेड, तो ऑलरेडी एप्सिलॉन मिला है। तो ये समझ में आना चाहिए फर्स्ट ऑफ जेड क्या है। और फॉलो ऑफ वाई, फॉलो ऑफ वाई क्या होता? यहां देखना, यहां वाई है, यहां वाई है यार, ये वाई बता रहा है, क्यू को देख लेना, ये भी बता रहा है वही है, तो दोनों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू है देख लेते, क्यू मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ वाई क्यू, यहां वाई और क्यू भी आएगा। वाई मतलब होता है ओपन आईडी, तो इसमें ओपन आईडी आएगा। और जब ये क्यू एप्सिलॉन पुट किया है, फॉलो ऑफ वाई मतलब फॉलो ऑफ क्यू, ये भी करना है आपको, फॉलो ऑफ क्यू भी आइडेंटिफाई करना होगा, उसको यूनियन कर लेना बाद में अभी नहीं, ठीक है? ये भी सेम है, फर्स्ट ऑफ क्यू ऑलरेडी देख लिया है तो वो कर रहा था, ठीक है? और अब करना है आपको फॉलो ऑफ क्यू क्या है। फॉलो ऑफ क्यू मतलब देखो यहां भी एक क्यू है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, बस फॉलो ऑफ क्यू मतलब फर्स्ट ऑफ जेड। फर्स्ट ऑफ जेड मतलब देखो क्यू, क्यू से क्या मिलेगा? वाई वाई, सब तो सेम है यार। जेड मतलब ये है, एप्सिलॉन मतलब क्या होता है यार? फॉलो ऑफ जेड, तो यहां फॉलो ऑफ जेड का भी जरूरत पड़ी। फॉल ऑफ क्यू मतलब फॉल ऑफ टी, ये भी जरूरत पड़ी।
फॉल ऑफ क्यू मतलब फॉल ऑफ क्यू, ये हटाना। तो अब फॉल ऑफ क्यू अब तक मिला ओपन आईडी, ओपन आईडी। तो अब आगे चलते, फॉल ऑफ जेड क्या है, फॉल ऑफ जेड, क्यू फॉल ऑफ क्यू, फॉल ऑफ क्यू जरूरत नहीं है, फॉल ऑफ क्यू देखो फॉल ऑफ टी है, टी तो ऑलरेडी कंसिडर किया है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉल ऑफ राइट, ये तो हो गया ना। फॉल ऑफ जेड कर लेते, फॉल ऑफ जेड मतलब फॉल ऑफ एस, एक और आया एक्स्ट्रा, फॉल ऑफ जेड इज फॉल ऑफ जेड, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो। और अब देखो फॉल ऑफ एस की वजह से, फॉल ऑफ एस मतलब देखो दो चीजें, एक ये है और आईडी डॉलर, डॉलर कामा क्लोज्ड, ये फॉल ऑफ एस खत्म हो गया और इसको हटा दो। फॉल ऑफ ये क्यू भी कर लिया ना, हटा दो। फॉल ऑफ जेड, जेड मतलब फॉल ऑफ जेड हटा दिया हम, और फॉल ऑफ जेड फॉल ऑफ एस ये भी कर लिया हम। फॉल ऑफ टी देखो, फॉल ऑफ टी मतलब फर्स्ट ऑफ जेड, फर्स्ट मतलब इससे फर्स्ट, इससे फर्स्ट, एप्सिलॉन तो ले लिया हम ऑलरेडी, एप्सिलॉन मतलब क्या होता है फॉल ऑफ एस, वो कर लिया हम। और क्यू, क्यू मतलब क्या है, वाई, वाई मतलब क्या है, वो सब कुछ आ गया। और कोई बचा है क्या, ओपन क्लोज भी आया, आईडी भी आया, और कोई सिंबल ही नहीं है, क्यों देखना है हमको, हटा दो सबको। ठीक है, 1 2 3 4, यहां क्या है 1 2 3 यार, फर्स्ट ऑफ जेड इज ए प्लस वन, जेड ये होता है 3, 3 मतलब 2 प्लस 1, और फॉल ऑफ वाई मतलब बी प्लस वन मतलब 3 प्लस 1। तो आपको ए प्लस बी करना है, 3 प्लस 2 करना है आपको, सॉरी 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। आंसर क्या होना चाहिए था 5, 17%। ये होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। बहुत बहुत लोग गलत किया है, तो बहुत टाइम लगता होगा, बट ये है। ठीक है, क्या नाम था बंडल, शिवम मिश्रा क्या पूछ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या, ए एंड बी कुछ ऐसे नंबरिंग है, फर्स्ट ऑफ जेड ये भी नहीं है इसमें, ये मतलब एक नंबर है, कैसे बता हमको, नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन, इस लाइन को समझ में आना चाहिए। नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन फर्स्ट ऑफ जेड कितना है, ये 3 है, 3 मतलब कितना है ए प्लस वन, ए प्लस वन मतलब ये कितना होता 2 प्लस वन, ये कितना होगा इससे 2 होगा, ऐसे निकलना होता कॉन्सेप्ट को, राइट। नॉन टर्मिनल दिया, क्या क्या सोच रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। MSQ नाइनटीन, एक और बार कर लेते यार, कुछ लोग बोल रहे हैं यार मैं गलत हो सकता हूँ भी, चेक कर लेते एक बार, इसको कर लेना 20 पहले कर लो, बाद में 19 कर लेते हैं, एक और बार कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। नॉन टर्मिनल पूछा है यार, इतने लोग बोल रहे हैं तो सेंटेंस में गलत है क्या इसमें, शिट, ओ माय गॉड, ये है, ये यार ये गलत था, वर्ड गलत था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ जजमेंट नंबर ऑफ टर्मिनल्स होता है, दैट वाज अ सेंटेंस मिस्टेक, ओके, आपको समझ में आ गया ना, सॉरी दैट वाज अ मिस्टेक।
नंबर ऑफ टर्मिनल से रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होता एग्जाम में। चैलेंज, यस। मैं फर्स्ट ऑफ एस देख के नंबर ऑफ टर्मिनल्स ही पढ़ रहा था, नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स नहीं पढ़ रहा था। ऋषि, राहुल, तो सोचो एक शॉर्टकट ऑलरेडी हम डिस्कस किया था। अगर एम्बिग्वियस चूज करना है तो कभी कभी शॉर्टकट भी मिलता है आपको एग्जाम में। यार कोई लेफ्ट रिकर्शन राइट रिकर्शन दोनों एक नॉन टर्मिनल के साथ है क्या? देखो है क्या? नहीं। देखो एस के साथ लेफ्ट एंड राइट दोनों रिकर्शन है ना, ये लेफ्ट रिकर्शन है, ये राइट रिकर्शन है। अगर सेम नॉन टर्मिनल के साथ लेफ्ट एंड राइट रिकर्शन है, ए के साथ नहीं है बट एस के साथ है, तो एम्बिग्वियस होता है ना, एम्बिग्वियस होता है ना। टाइम लगता होगा आपको फाइंड आउट करने में, बहुत इजी यार एम्बिग्विटी बोलने के लिए। फॉलो ऑफ इस देखो, डॉलर इसमें ऐड नहीं किया तो हटा दो। चीज LL1, अगर LL1 होगा तो यहां जो आएगा पहले, यहां जो आएगा दोनों अलग होना चाहिए। तो देख लो अलग होगा क्या। देखो ये 1 मिलेगा आपको, कहने से ऐसे एस, और ए मिलेगा, ए से 1 मिलेगा। यार दोनों का कॉमन टर्मिनल होगा तो LL1 नहीं होता। और लेफ्ट राइट लेफ्ट रिकर्शन ऑलरेडी है यार, इतना क्यों है, एम्बिगुअस ऑलरेडी है, क्यों देखना है LL1? ये कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। साइज ऑफ फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ एस क्या है? एक होता है डॉलर, क्यों एस बाय डेफिनेशन स्टार्ट है तो यहां डॉलर होगा। एस के बाद क्या है? बी है, और दो एस है यहां पर, दोनों का देखो इस इसके बाद कोई नहीं है, हटा दो कि फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ एस। इस इसके बाद फर्स्ट ऑफ एस क्या होता? फर्स्ट ऑफ एस ये होगा और ये होगा, और ए से ये मिलेगा नहीं तो ये मिलेगा, ये 1 यहां आएगा, मतलब इनडायरेक्टली 1 यहां आएगा, तो 1 तो मिलेगा आपको और कोई बचा नहीं। तो साइज ऑफ 3 बिल्कुल सही है, तो ए एंड डी बिल्कुल सही आंसर है, ए डी। कितने लोग किया देखो, ए डी 78-53, मतलब ओवरऑल 53% से ज्यादा नहीं है। ट्वेंटी वन, इतना इतना इजी था यार, ये तो MCQ कह रहा है। MCQ तो बहुत इजी लगता है आपको, ठीक है। बहुत इजी है, तो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप आंसर कर सकते होंगे। क्या आंसर किया क्या? बहुत इजी है। आई एम सेइंग दैट पेन एंड पेपर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब शॉर्टकट होगा। देख के ही कुछ लोग बताएंगे आंसर क्या होगा।
एनीवन? अनुभव, क्या काम कर रहे हैं यार आप? इतना इजी बोल रहा हूँ, पेन पेपर जरूरत ही नहीं यार, पेन पेपर जरूरत ही नहीं है। आंसर होगा इवन सिर्फ डी, 25%। ग्रेट। देखो इसको देख के समझ में आ रहा है ना, ए से टी, सी से टी, ऐसा एम्बिगुअस ग्रामर यार। जब एम्बिगुअस सीएफजी होता है, सीएलआर नहीं होता, एलआर जीरो नहीं होता, एसएलआर एलएलआर कोई नहीं होता, बोथ सीएलआर1 एंड एलएलआर1 कंटेन्स कॉन्फ्लिक्ट्स, इसलिए वो ग्रामर सेटिस्फाई नहीं होता। नो आर आर कॉन्फ्लिक्ट्स इन सीएलआर1, इसका मतलब यह ग्रामर, ये देखना होता ये कॉन्फ्लिक्ट आर आर क्यों होता है, ये टी टी दोनों होता है, टी जब रीड किया दोनों में टी डॉट मिल जाता, तो इसलिए आर आर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, ये नहीं बोलना चाहिए था। और नो आर आर कॉन्फ्लिक्ट तो होता है, इसलिए तो प्रॉब्लम है। ठीक है, इनडायरेक्टली टी जो है दोनों से डेराइव होता है। ठीक है, तो देख लेना, तो आंसर डी बिल्कुल सही है। 22, कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर जी। ये एन, ओ आई एम सॉरी एमएसक्यू। ठीक है, ये अनुभव। एनीवन? ABT, any shortcut here? कितना लोग को पता आंसर क्या है? देखो ये ग्रामर जो है एम्बिगुअस है यार। डी यहां आया तो उससे क्या मिलता, डी ए। और देखो ये डी यहां पुट कर सकते, यहां से भी डी ए मिलेगा। जब डी ए दो पॉसिबिलिटीज है, ये एम्बिगुअस ग्रामर है यार। जब एम्बिगुअस होता ये फेल होगा, ये फेल होगा,
और सब फेल होता है, राइट। जो लोग आंसर टिक कर रहे हैं सब गलत है। देख लेते कितने परसेंटेज है, सब गलत है, सब गलत है, मतलब सब गलत है। यहां पर जो भी किया है सब गलत है, क्यों आंसर चूज ही नहीं कर सकते आप। सिर्फ लेफ्ट रिकर्शन से नहीं होता अनुपम, राइट। गुड आयुषी। देखो क्या क्या चूज किया है, बात ही समझ नहीं आ रहा है क्या चूज कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। कितना इजी क्वेश्चन है। इसको ऐसे कर लेते हैं, MSQ कर लेते हैं थोड़ा कंफ्यूजन के लिए, ठीक है। MSQ, नॉट ट्रू, याद रखना। यू आर राइट प्रबाल, राइट। कुछ भी शुभम हो सकता है। न्यूमेरिकल आंसर में 0 भी सही है आंसर कभी कभी। ठीक है, LL1 पार्सर इज अ टॉप डाउन, ये तो ट्रू है। एम्बिग्यूअस ग्रामर नेवर, ये एक्चुअली फॉल्स है। तो आपको नॉट ट्रू चूज करना है, ये नॉट ट्रू है। क्यों एम्बिग्यूअस ग्रामर नेवर बी LL1, ये तो मे बी LL1 बोल रहा है। कब होगा LL1, इम्पॉसिबल है। LL1 ग्रामर इज ऑलवेज LL1, ये तो ट्रू है। हमको ट्रू चूज नहीं करना है, नॉट ट्रू चूज करना है। LR1 ग्रामर इज LL1, यार हमेशा LL1 नहीं होता, कभी कभी नहीं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आंसर ए चूज करना था आपको, बी एंड डी। बहुत कम लोग चूज किया है ये नॉट ट्रू वाला, बी एंड डी। तो 62% लगभग सही किया आंसर। सम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट ऑफ एस एंड फॉलो बी फॉर द ग्रामर। तो इनका मीनिंग ये है, फर्स्ट ऑफ एस साइज प्लस फॉलो ऑफ बी, दोनों को साइज कंप्यूट करके ऐड कर लो, ये है। एक्चुअली ऐसे स्टेटमेंट नहीं होता। सम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट ऑफ एस एंड फॉलो ऑफ बी, ये होता है। क्या है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। तो आंसरिंग कर लेना फटाफट, न्यूमेरिकल आंसर टाइप 120 सेकंड्स।
बिल्कुल सही है आंसर, सबका आंसर सही है। सबका तो सेम आ रहा है आंसर, तो कर सकते होंगे फटाफट, राइट? बोल तो खत्म हो रहा है। फर्स्ट ऑफ एस क्या है? फर्स्ट ऑफ एस 0 1, ए से क्या मिलेगा? 0, तो ये इसका मिलेगा आंसर 0,1। और इससे ज़्यादा कोई सिंबल ही नहीं है, टर्मिनल नहीं है, तो क्या चूज करोगे? प्लस फॉल ऑफ बी। देखो कितने बीस है, यहाँ भी एक बी है, यहाँ भी एक बी है, यहाँ भी एक बी है, इस दोनों को हटा सकते क्यों? फॉल ऑफ बी इज द फॉल ऑफ बी, कोई दिक्कत नहीं है। फॉल ऑफ बी इज द फर्स्ट ऑफ 1, तो यहाँ सिर्फ 1 मिल रहा है आपको। देखो इनका साइज तो 2 है, इनका साइज तो 1 है, तो क्यों कैसे? देखो ये नंबर ऑफ टर्मिनल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, तो आंसर मिलेगा 3। ये साइज चाहिए ना आपको, साइज 2 है, साइज यहाँ पर 1 है, ठीक है? एलिमेंट भी 1 है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 1 है, तो 2 + 1 3 मिलेगा आंसर। तो कितने लोग किया है आंसर 3? 43, बाकी लोग 25। If you measure states in LR1 parser to form a LR, it may introduce what conflicts? Okay, conflicts क्या होगा? ये MCQ है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और आप बहुत जल्दी कर सकते हैं यार, इतना तो जरूरत ही नहीं है। थियरी, सिर्फ थियरी। Anyone? बहुत फेमस क्वेश्चन यार। If you measure states in LR, CLR or LR, सिर्फ LR और CLR to form LR, what it may produce? It may produce what conflicts? देखो in LR1, it's not saying that not LR1, right? It's already LR1 and you want to measure states of LR1, then what conflicts it will produce? RR. SR तो impossible, क्यों? ऑलरेडी LR1 की स्टेट्स को मर्ज कर रहा है, नॉट LR1 की मर्ज नहीं कर रहा है, याद रखना। इट इज नॉट सेइंग दैट नॉट LR1, यहां पर क्लियरली दिया है CLR पार्सर में जो स्टेट्स है उसको मर्ज किया है। अगर ऑलरेडी CLR नहीं है तो बहुत दिक्कत हो सकता यार, राइट? SR भी हो सकता, RR भी हो सकता, बट यहां दिया है ऑलरेडी LR पार्सर है तो उसमें स्टेट्स मर्ज किया है, तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ RR पॉसिबल है, RR पॉसिबल है और कोई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो आंसर आपका बी होना चाहिए था, 61। बाकी लोग देखो 25 क्वेश्चंस तो हम किया है अब तक, तो और रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट सेशन में हम इस जो बचा है 28, 29, 30 ये क्वेश्चंस को हम कर लेते। 5 क्वेश्चन होमवर्क दिया है तो उसको कर लेना। और देखो लेक्सिकल सिंटैक्स में क्या क्या किया है हम, इसमें टोकन्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाकी तो आपको पता है क्या क्या क्वेश्चंस है। सिंटैक्स एनालिसिस में क्या क्या कर रहा है हम, LL1 और LR ग्रामर्स जो है उसको करना है, इसको भी करना है, और एम्बिग्वियस ग्रामर है इसको भी करना है, राइट? ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंटैक्स एनालिसिस में, और बाकी क्वेश्चन जो भी है हम कल देखने वाला है, ठीक है?
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे. एनी अदर डाउट्स टुडे? ना ना ना, ओनली 3 नहीं, 5 होगा यार. 3 क्यों होगा? ठीक ही होगा यार. या बाय बाय. क्वेश्चन 24 देख लेते. कुछ लोग को क्वेश्चन 24 में दिक्कत हो रहा है. क्या है क्वेश्चन 24? ये है यार 24. इतना एक्सप्लेन किया. सम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट ऑफ एस एंड फॉल ऑफ बी. फर्स्ट ऑफ एस क्या है यार, ये मैं क्यों करना है? फर्स्ट ऑफ एस कंप्यूट करना चाहिए ना. व्हाट इज फर्स्ट ऑफ एस? ये कंप्यूट कर लिया क्या आप? 0,1 ए से ये है 0, ये आना चाहिए. फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट क्या है? फॉल ऑफ बी. फॉल ऑफ बी कंप्यूट किया क्या? फॉल ऑफ बी में क्या दिक्कत हो रहा है वो सब ठीक कर लेना पहले. बी यहाँ है और बी यहाँ है, ये तीनों को देखना बहुत जरूरत है. और इसको देख लिया तो 1 आएगा, इसको देख लिया तो कुछ नहीं आएगा. क्यों? फॉल ऑफ बी मतलब फॉल ऑफ बी. फॉल ऑफ बी ऑलरेडी 1 है तो उससे ज्यादा नहीं कर सकते. तो फर्स्ट ऑफ एस 0,1 है, फॉल ऑफ बी 1 है. तो इसमें साइज कितना है? इसकी साइज कितना है? फर्स्ट ऑफ एस में इसकी साइज जो है 2 है, इसकी साइज कितना है? 1 है. बस 2 + 1 3 है. साइज मतलब नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन द सेट. यहां पर देख लेता हूं शुभम क्यों दिख रहा है. वो बाद में शेड्यूल नहीं किया होगा इसलिए. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 2019. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. इसमें क्या दिक्कत है? फॉलो. ओ फॉलो मैं क्या करूं? फॉलो कंप्यूट करने में फॉलो ऑफ वाई. ठीक है, फॉलो ऑफ वाई. इसको रहने दो यार. फॉलो ऑफ वाई, फॉलो ऑफ वाई. एक गलती था, वो यहाँ टर्मिनल होना चाहिए था. ये मैं इतना नजर नहीं किया था, वो नॉन टर्मिनल था. ठीक है, फॉलो ऑफ वाई. फॉलो ऑफ वाई मतलब पूरा इस ग्रामर में देखो. यहाँ एक वाई है, यहाँ एक वाई है, इस दोनों को देखो. ये बता रहा है इसमें से पहले टर्मिनल कौन आएगा, ये बता रहा है पहले टर्मिनल क्या आएगा. तो जब वाई क्यू देख लिया, क्यू देख लिया, क्यू मतलब होता है अगेन वाई क्यू. वाई क्यू मतलब होता है ओपन आईडी. तो इससे क्या मिलेगा? ओपन आईडी. और दूसरा है एप्सिलॉन. जब एप्सिलॉन आया तो फॉल ऑफ वाई फॉल ऑफ टी चाहिए होता. तो फॉल ऑफ वाई मतलब इतना कॉन्सेप्ट है, एक दो नहीं बहुत सारे हैं. तो फॉल ऑफ वाई मतलब फर्स्ट ऑफ क्यू. फर्स्ट ऑफ क्यू से क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ वाई. फर्स्ट ऑफ वाई मतलब ओपन आईडी. और क्या मिलेगा? फॉल ऑफ वाई मतलब क्यू मतलब एप्सिलॉन भी होता है. फॉल ऑफ वाई मतलब इसका भी देखना होता है फॉल ऑफ टी. तो यूनियन फॉल ऑफ टी भी करना होता. और क्या? या फॉल ऑफ वाई मतलब फर्स्ट ऑफ क्यू. फर्स्ट ऑफ क्यू तो ऑलरेडी किया है वो, राइट. ये हो गया एक काम. और फॉल ऑफ टी, फॉल ऑफ टी क्या होता? यहां भी एक टी है. और बस फॉल ऑफ टी, वो फॉल ऑफ टी कहां से आया? कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? एक बार देख लो यार. फॉल ऑफ वाई ये हो गया, फॉल ऑफ वाई ये हो गया, फॉल ऑफ टी. फॉल ऑफ तो सही है. फर्स्ट ऑफ जेड. फर्स्ट ऑफ जेड क्या है? फर्स्ट ऑफ जेड मतलब क्यू है. क्यू मतलब क्या है? वाई है. वाई है मतलब ये ओपन आईडी ऑलरेडी मिल गया. तो क्यू में क्या मिला? एप्सिलॉन. तो फर्स्ट ऑफ जेड भी चाहिए. फर्स्ट ऑफ जेड मतलब क्या होता है? और देखो एप्सिलॉन भी होता है. तो ये क्या मिला? देखो फॉल ऑफ टी मतलब फर्स्ट ऑफ जेड. जेड मतलब क्यू जेड. क्यू जेड से क्या होता? क्यू एप्सिलॉन जेड एप्सिलॉन. दोनों एप्सिलॉन है तो एस तो मिलेगा ना. तो फॉल ऑफ टी में ये होता है, डॉलर भी होता है और बाकी तो हो, बट ये देखना होता है ना कितना होगा आपके पॉसिबिलिटीज, सब देखना होता है ना. फॉल ऑफ एस मतलब ये होता है क्लोज पैरेंथेसिस, ये भी आएगा इसके अंदर. यार ये तो कंप्यूट करना होगा ना आपको. तो ऑलरेडी ओपन आईडी है, अभी डॉलर भी आया, क्लोज पैरेंथेसिस है, और कोई बचा है क्या देखने के लिए? इसमें पूरा
ग्रामर में आईडी है, ओपन है, क्लोज्ड है और इसके अलावा डॉलर है, सब आ गए। क्यों करोगे, टाइम वेस्ट क्यों करोगे? तो 4 से ज्यादा तो नहीं आएंगे ना, तो इसलिए फॉलो ऑफ वाई में 4 आया। बट 4 को कहा था b+1, b+1 मतलब 3+1 होता है 4। ठीक है, 25 19 तो समझ में आया। फॉलो ऑफ 5 कितना बड़ी हो रहा है, और भी हो रहा था, हम नहीं किया। क्यों? वो ऑलरेडी सारे आ गए इसके अंदर, हम करेंगे नहीं। ठीक है, और जो भी है उससे ज्यादा नहीं जा सकता, हम इतना ही छोड़ दिया। ठीक है, 25 ये है यार। 25 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यार। ये ग्रामर LR1 है, CLR है, इसमें हम स्टेट्स को मर्ज किया है। स्टेट्स आर मर्ज्ड, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है? पॉसिबिलिटी। स्टेट्स आर मर्ज्ड इन टू गेट, क्या है, टू गेट टू फॉर्म LALR। क्या होगा? ओनली RR पॉसिबल, SR तो इम्पॉसिबल है। ये तो ऑलरेडी क्लास नोट्स में लिखा है और एग्जाम्पल भी दिखाया, राइट। इट में मतलब गारंटी नहीं है हमेशा, इट में प्रोड्यूस ओनली RR कॉन्फ्लिक्ट, नॉट एनी अदर। ठीक है, और नाइनटीन समझ में आया? शुभम मिश्रा, दुनिया में कहा है आप? 19 क्यों समझने आया है? 19 में क्या दिक्कत है? पूरा कहानी सुनाना है क्या? पूरा सब्जेक्ट को पढ़ाना है क्या आपको? 19 समझने के लिए क्या दिक्कत है यार? 19 में क्या प्रॉब्लम है यार? 19 कुछ है क्या इसमें? 19 में पहले आप फर्स्ट एंड फॉलो समझ लेना। दुनिया में सबसे इजी टॉपिक है कंपाइलर, और कंपाइलर में ये ऑलरेडी एक गलती वर्ड है तो इसको हटाया। तो अभी यार नंबर ऑफ टर्मिनल्स कंप्यूट करने में क्या दिक्कत हो रहा है? फर्स्ट ऑफ जेड क्या आएगा? कंप्यूट कर लो आप, सीख लेना। फर्स्ट ऑफ जेड में क्या आएगा? जेड ये है, फर्स्ट ऑफ जेड क्या है? एप्सिलॉन तो डायरेक्टली दिख रहा है, और इसमें से फर्स्ट टर्मिनल क्या आएगा? और ये वाई क्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लो, एप्सिलॉन यहां भी सब्स्टिट्यूट कर लो। तो जब वाई क्यू सब्स्टिट्यूट किया यहां पर, वाई से ये आएगा ओपन आईडी। ठीक है, और एप्सिलॉन यहां सब्स्टिट्यूट किया, जेड से क्या आएगा? वही रिपीट होगा, तो कोई और ज्यादा जनरेट नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ जेड ये तो बिल्कुल 3 है, पर 3 इज इक्वल टू A+1, इसका मतलब होता है A इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा तो अभी तक तो एक्सप्लेन कर रहा था, फॉलो ऑफ 5 ये कंप्यूट करने में दिक्कत हो सकता, क्यों? आप ज्यादा दिमाग नहीं लग पा रहा है, तो फॉलो ऑफ वाई इतना इजी नहीं है। यहां पर यहां भी वही है, यहां भी वही है यार, दोनों को वाई देखना होता, दोनों का वाई अलग है। तो ये वाई बता रहा है क्यू में पहले कौन आएगा? क्यू से वाई क्यू, वाई क्यू से वाई मतलब ओपन आईडी, तो एक तो आ गया ओपन आईडी, तो एक मिल गया। और क्यू से एप्सिलॉन आएगा, तो फॉल ऑफ वाई मतलब फॉल ऑफ टी, फॉल ऑफ टी मतलब फर्स्ट ऑफ जेड, फर्स्ट ऑफ जेड मतलब ये हमेशा आएगा, राइट, दोबारा भी आएगा। और देखो टू जेड एप्सिलॉन भी है, तो फॉल ऑफ टी मतलब फॉल ऑफ एस, फॉल ऑफ टी मतलब फॉल ऑफ एस भी होता, क्योंकि जेड एप्सिलॉन भी है, तो टी मतलब एस है, एस फॉल ऑफ एस मतलब देखो एस के बाद क्लोज पैरेंथेसिस है, क्लोज भी होगा, और डॉलर इसलिए होता है, तो फॉल ऑफ एस, एस इज स्टार्ट सिंबल, इसलिए डॉलर भी होता है। तो फर्स्ट ऑफ जेड ये A+1 कहा था, 3+1 ये 2 आ गया, और ये B+1 कहा था, ये B+1 क्या है? कहा है B+1? यहां है। B+1 क्या है? 3+1, क्यों 4 बताया ना, फॉल ऑफ वाई 4 है, नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन फॉल ऑफ वाई 4 है, तो 4 मतलब 3+1, बी मतलब 3 है, a प्लस बी मतलब a इज 2, b इज 3, 2 + 3 मतलब 5 होता है। ठीक है यार, टाइम लगता है, जब दिमाग ही नहीं लगता आंसर क्यों आएगा? ठीक है, और क्यों बार बार 100 टाइम्स भी एक्सप्लेन किया तो वही आंसर मिलेगा।
क्वेश्चन 17 को का ऑप्शन बी सेम क्वेश्चन, हाँ हाँ ना सेम नहीं है, वो अलग है। तनुजा कल का जाके देखो क्या चेंज किया, मैं खुद ही चेंज किया। क्वेश्चन 17 मैं खुद ही बनाया ना, मुझे पता है ना क्या चेंज किया है। मतलब यही तो प्रॉब्लम है आप लोग को, क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है, क्या चेंज किया। कल का क्वेश्चन में ये क्या है, आई बड़ा दिया, एफ स्मॉल दिया, ये बिल्कुल अलग है ना। ये कीवर्ड नहीं है, वो कीवर्ड है, तो ये बात अलग है। इफ ये आइडेंटिफायर होता है, इफ ये मतलब ये फंक्शन होता है यार, ऐसे एफ ऑफ ए जैसे दिखता है, बट ये स्मॉल आई है, स्मॉल एफ है, ये कीवर्ड होता है। दोनों बिल्कुल अलग है, ये कीवर्ड है, ये आइडेंटिफायर है। इतना तो डिफरेंट नहीं पता तो क्या समझ लोगे आप। कंप्यूटर साइंस पढ़ना भी जरूरत नहीं है, ये केस सेंसिटिव बात ही नहीं पता, तो यू नो नीड टू स्टडी कंप्यूटर साइंस, जाके घर में सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज यार, एक अपर केस एक लोअर केस लेटर लिखा है, क्या मीनिंग है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी, अच्छा जो भी है देख लो, ऑप्शन बी सेम है, अपर केस लोअर केस वो कंपेयर कर लो यार, मैं क्या देखूं। ठीक है, चलो सी यू टुमारो देन, टेक केयर, बाय बाय। और कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन बी यार, ऑप्शन बी है, ओके। देखो यार क्वेश्चन 17 क्या प्रॉब्लम है, ऑप्शन बी वहां पर कैपिटल एफ लिखा है, दोनों बिल्कुल अलग है ना। कैपिटल एफ मतलब एफ होता है फंक्शन, ये आइडेंटिफायर होता है यार। बात तो क्लियर है यार, ऑप्शन ये समझ लिया, ऑप्शन बी वही तो बात है यार। वहां एफ लिखा बड़ा, ये होता है आइडेंटिफायर, ये होता है कीवर्ड यार। यही तो एग्जाम्पल वहां भी दिया यहां भी दिया, वही तो है ना दिमाग लगाना। वहां कीवर्ड होगा तो यहां कीवर्ड होगा ना, ये फॉर कीवर्ड है, वो इफ कीवर्ड है, बट ये कीवर्ड नहीं है। उस जो पीवाई लास्ट सेशन में दिखाया ये कैपिटल एफ, ये कीवर्ड नहीं होता, अभी आइडेंटिफायर होता है यार। थोड़ा भी दिमाग अप्लाई नहीं करता, ऑप्शन ये भी चाहिए होता उनको यार, क्या बोलूं उनको। प्रमित तो मैं क्या करूं, आप नोटिस नहीं कर पाया, मैं उसी एग्जाम्पल को मैं ऑप्शन जैसे एक्सप्लेन कर रहा था, और फिर आप एग्जाम्पल भी दे रहा है यार, मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं कोशिश कर रहा हूं उसको नहीं दिखाना है, ठीक है। प्रमित क्या प्रॉब्लम है आपको, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूं आपको, आपका क्वेश्चन कहाँ गया दुनिया में। इनका क्वेश्चन एक बार इनको बताओ यार, प्रमित को। ऑस्ट्रेलिया में फेंका क्या वो, संडे में देखना क्या क्वेश्चन को। सेम एग्जाम रिवीजन प्रैक्टिस एक साथ प्रॉब्लम हो रहा है, मत करना। प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर आपको रियली दिक्कत हो रहा है मत करना यार, यू आर हैविंग लिमिटेड माइंड। अगर आप खुद ही सॉल्व नहीं कर पाया तो उसको दिक्कत मत करना, आपको सेमेस्टर एग्जाम ही करना है, वही कर लो, गेट को मत करना, ठीक है। बहुत इजी सॉल्यूशन है, अगर आपसे नहीं होता मत करना, जब दिल से आप करना चाहते तभी आप सॉल्यूशन निकाल दोगे। मैं बताया, गॉड आके बताया सामने, भगवान आके आप ये कर लो, आप नहीं करोगे क्योंकि आपकी दिमाग अलग है, भगवान का दिमाग अलग है, राइट। वो आके भी बोल दिया तो आप नहीं कर सकते, राइट। भगवान का दिमाग सबका मिलके होता है यार, आपका दिमाग यूनिक है,
तो आप जो आपको चाहिए वो कर लेना, ठीक है। बहुत इजी सॉल्यूशन है यार, रियली आपको करना है तो उसी दिन आप अगर जब कोशिश कर रहे हैं तो आंसर मिलता है। जो कोशिश नहीं करेगा वो कभी आंसर नहीं मिलेगा उनको। 10 साल भी करो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होता है ना, बीटेक में फेल होता है, 10 साल 5 साल 4 साल उनसे पास नहीं होते वो लोग। पता नहीं यार, एग्जाम में जाके कुछ भी लिखे तो पास होता है वो, सेमेस्टर एग्जाम में पास नहीं होता कुछ लोग, आपको पता है। बैकलॉग एग्जाम में जाके क्या लिखना है उनको नहीं पता, क्वेश्चन देख के क्या और सोच रहा होगा कल क्या किया परसों क्या किया। तो प्रॉब्लम तो सबको होता है, राइट। सजेशन इसलिए बोल रहा हूं, यू हैव टू वर्क हार्ड। जो हार्ड वर्क कर लेता उनके लिए बहुत इजी होता है। दुनिया में सब कुछ देखने में हार्ड लगता है, अगर देखने में इजी लग रहा है करने में हार्ड लगता है, देखने में हार्ड लग रहा है बट करने में बहुत इजी लगता है। तो ये जो समझ लिया ना बात, तो आराम हो जाएगा। आप देखने में हार्ड लग रहा है कर लो, इजी हो जाएगा। देखने में इजी लग रहा है हम नहीं कर सकते। याद रखना, एक्टिंग करना, मूवी देख के यार मैं भी कर सकता हूं, बट जाके जब कैमरा के सामने देखो नहीं कर सकते हम। तो बात अलग होता है, ठीक है। और एनीथिंग एल्स? कौन बताया आपको करने में? CLR LLR ग्रामर यार मत करना, कोई एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्र प्रकाश। यू आर नॉट द गॉड टू एवरीथिंग, आपको जो लगता है वो ही कर लो, ठीक है। यूनिट रूल ये होता है एक सिंबल टू सिंबल। यूनिट रूल ये होता है, ऐसा होता है A टू B, A यूनिट रूल है, और A टू ये भी यूनिट रूल है। बट ये है सिंप्लीफिकेशन में है, हटाते हैं इसको हम। नॉन टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल, सिंबल टू सिंबल, सिंबल टू सिंबल, यूनिट इसको बोलते हैं वन। ये वन है ये भी वन है, तो यूनिट टू यूनिट इसको बोलते हैं हम यूनिट रूल, ठीक है। और चलो सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, मंडे, आई एम सॉरी। तो ऑल द बेस्ट। शॉर्ट नोट्स बनाने में पूरा फुल नोट्स ही बन गया तो मत करना यार अनुभव, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है। चलो सी यू on Monday. Bye bye. Take care. All the best to India. That, I hope everybody is watching on Sunday. Right? Bye bye. Take care.